yesterday we have studied in a typical raceme type of inflorescence, toward the apex younger flower are observed and toward the base the fruits are observed. So these characteristic features are known to you. Androecium, 6 stamens, tetradynamous condition, that is 4 long and 2 short stamens are observed. Ovary superior, gynoecium of 2 fused carpels, that is bicarpellary syncarpus superior and 2 carpels by formation of false septum or rhapillum. Fruits either silical or siliqua. So presence of siliqua type of fruit is characteristic. Presence of, just a minute. एक minute. So fruit is siliqua or silicular type of a fruit, and the remaining part is regarding primitive and advanced feature of this family. So as far as primitive and advanced features considered, you just observe primitive character leaves simple and alternate. This is primitive feature. I think all of you are known. Presence of compound leaf is advanced feature. Flower bisexual, hypogynous and actinomorphic is also primitive characteristic feature. While flower unisexual and irregular is advanced characteristic feature. Calyx and corolla fused or polypetalous is primitive feature, and calyx and corolla advanced is fused, which is advanced feature. Stamens polyandrous, poly means many, androus that is androecium, is again primitive character, and ovule anatropous or simple type of ovule or straight ovules is primitive characteristic feature. Then advanced character. Plants are generally herbs, annual or biennial, so it is advanced character. Leaves exstipulate, exstipulate means without stipule. Flowers ebracteate, that is without bract. Sometimes zygomorphic. For example, in case of Iberis, they are zygomorphic. Gynoecium, bicarpellary and syncarpus, and simple fruit. These are the advanced characteristic feature. Then affinities of Brassicaceae. Rendell has placed this family under the order Rhodales. I think you are known with some of the orders: Ranels, Rosales, Rhodales, Myrtles. So it is placed according to Rendell in Rhodales. Bentham and Hooker placed it under the cohort, that is Parietals. Family is related to Papaver on one hand and to the Caparidaceae on the other hand. Bentham and Hooker and Hutchinson hold the view that Brassicaceae is derived from Papaver ancestor, whereas Eames, Arbour, Haig, Urey believed it to have a Caparidaceous alliance. So Caparidaceae से ये related है, ऐसा उनका view था. So just this part was remaining. मैंने दो allied families के बारे में बताया था. So I would like to show you one more interesting document that is regarding these different families and their characteristic feature. क्योंकि हमने अभी Brassicaceae family देखी थी. You just observe this. That is Brassicaceae with 375 genera and 3,200 species. The important genera are like Brassica nigra, black mustard, Brassica campestris, kali sarso, Brassica campestris variety sarso, that is normal sarso, Brassica campestris variety toria, that is toria, Brassica hirta, white mustard, सफेद mustard, शायद आपको पता होगा, Iruca sativa, that is tara, Brassica juncea, Indian mustard, Brassica oleracea,
that is Brussels sprout. Brassica oleracea variety capitata, cabbage. Brassica oleracea variety Colarappa, cole or which is known as navel cone or band gobi. Brassica oleracea botrytis variety cauliflower. Raphanus sativus radish. Chiranthus chirai, that is wallflower. Capsella bursa pasturis shepherd spurs. Synapsis white mustard. Dentaria bulbifera. Lunaria. Raphanus sativus or radish. Then Nasturtium officinalis, that is watercress or Brahmi sag. Lepidium sativum, that is garden cress. Mathuola incana, that is Poepida. Iberis amara, that is rocket candy tuft. And Arabidopsis thaliana. So these are the interesting plants from this family. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? Yes, sir. थोड़ा सा ध्यान में रखो, मैं बहुत सारे प्लांट बता रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि एटलीस्ट अगर मैंने 20-25 बताए तो उसमें से 2-4 जरूरी आपके ध्यान में रहेंगे. और कई बार बाद में इन नेक्स्ट सक्सेसिव फ्यूचर अगर प्लांट का नाम आता है तो कम से कम आपके ध्यान में इतना रहेगा कि मैंने ये प्लांट का नाम कभी सुना है. जरूरी नहीं है कि आप सभी ये प्लांट के नाम ध्यान में रखो. Last time I have told you regarding the diagnostic feature. Diagnostic means जरूरी वाली. Flowers actinomorphic, rarely zygomorphic. अभी हमने देखा था कैंडी टफ्ट में flowers zygomorphic है. Sepals 4 in 2 whorls of 2 each. Petals 4 diagonally arranged, cruciform. Stamens 6 tetradynamous. Gynoecium bicarpellary, syncarpous, parietal placentation. Ori bilocular due to formation of false septum, that is rhiplum, and fruit siliqua or silicula type. So these 5 characteristic features are diagnostic characteristic features and important characteristic feature. And these are few of the members which are represented by this family. So in this way, we have completed Brassicaceae family, and earlier we have completed Malvaceae family. I should take here review of Malvaceae, and then we start with new family. As far as Malvaceae considered, in India it is represented by 75 genera and 1000 species. Few of the important are like Malva sylvestris, Saida cordifolia, Saida के बारे में मैंने उसका नाम बताया था चिकना, Abichulon indicum or Abichulon asiaticum, both these are known as a mudra. Abichulon polyandrum, Abichulon theophrasti, then Althea rosea, that is Gulkera, then Ablimoscus esculentus, our normal bendi, or Hibiscus esculentus is also its name. Ablimoscus manihot or ran bendi, then Ablimoscus moschatus, that is Muskandana. Gossypium hirsutum, that is upland cotton. Gossypium herbaceum. Hibiscus cannabinus, Hibiscus collinus, Hibiscus ficulens, Hibiscus urcatus. Hibiscus के बहुत सारे species है. Then Malacra capitata, that is ranbendi, and Urina lobata, that is Willite sun. So these are the members of Malvaceae. And as far as diagnostic features considered, flowers bisexual, actinomorphic, hypogynous, pentamerous, with presence of epicalyx. So remember, presence of epicalyx is diagnostic feature in case of Malvaceae. Calyx free or united, many times आपने देखा है calyx united है. Corolla free polypetalous. Stamens many or indefinite monoidalpous, anthers monothecous. Stamens united to form a tube, that is staminal tube. Gynoecium many, often 5. Syncarpous, ori multilocular, axile placentation, and ori is superior. So these are the characteristic features of Malvaceae. I think, hello, आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक हमने 2 families देखे हैं, and I think it is best known to you. It is comparatively difficult to remember these different families. But again, I repeat, if you remember at least one or few examples from the family,
and most of these plants are familiar to you. फॉर एग्जाम्पल अगर मालवेसी बोले तो कम से कम 2 प्लांट आपके ध्यान में होना चाहिए, एक हिबिस्कस और दूसरा कॉटन। ब्रासिकेसी बोले तो कम से कम आपके 2 प्लांट ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज कॉलीफ्लावर है, मस्टर्ड है और फूलगोभी, सॉरी अपना कैबेज है। सो एटलीस्ट दीज 3 प्लांट्स एंड वन मोर इंटरेस्टिंग दैट इज शेपर्ड्स पर्स और कैप्सेला बुरसा पेस्टोरिस। So these plants should be known to you so that you can write down the description. While writing the characteristic feature, you have to sometime ask to draw the diagram. But remember, diagram should not be accurate. वहां आपकी कोई चित्रकला की एग्जाम नहीं ले रहे, पिक्चर्स कैसे निकालती है नहीं देख रहे। एटलीस्ट योर डायग्राम शुड बी साइंटिफिकली करेक्ट एंड योर डायग्राम शुड बी इवन ओनली लाइन डायग्राम। सो कीप these things in a mind, ये बातें ध्यान में रखो। तो should we start with the next family? Yes, sir. And our next family is family that is Fabaceae. क्या आपने ये फैमिली का नाम सुना है? Fabaceae नाम सुना है? नाम सुना है Fabaceae का? Yes, sir. Okay. तो हम पहले फोटोग्राफ्स कौन से निकाले हैं, यानी अपने फ्रंट पेज पे क्या क्या है देखते हैं और उसके बाद हम फैमिली की तरफ देखते हैं। रिमेंबर, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फॅमिली फ्रॉम अवर एरिया। आपल्या एरिया मधली सगळ्यात लार्जेस्ट फॅमिली। अगदी सेकंड की थर्ड हा वादाचा मुद्दा नको घ्यायला, पण इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॅमिली, ऍटलिस्ट आफ्टर ग्रास फॅमिली अँड ऑर्किडेसी फॅमिली। ग्रास फॅमिली सगळे ग्रासेस बघतो, लार्ज स्केल वरती तुम्ही थ्रू आउट द वर्ल्ड कुठेही जा ग्रासेस दिसतात, हेन्स दे आर अबंडंट। सेकंड वन ऑर्किडेसी एंड थर्ड वन दिस फैबेसी। फैबा का मतलब है वाल, मराठी में हम जो वाल बोलते हैं दैट इज फैबा। ध्यान में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. राइट टॉप की फोटोग्राफ देखो, किस चीज का है ये फोटोग्राफ? हेलो, ये कौन सा फोटोग्राफ है? सर नाम नहीं पता। कुछ तो नाम होगा, आप खाते क्या नहीं खाते ये? Beans. No, sir. Beans. अरे Beans. बीन्स है, मतलब फल्ली या वाल बोलते आप, है ना? हाँ, हेलो? बट ऐसे नहीं दिखते सर। सर बिन्नस वाल, बिन्नस वाल। हाँ, सर बिन्नस वाल। बीन्स बीन्स बोलते हैं या वाल। हम जब नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग टाइप है, हम इन सभी को मराठी में वाल बोलते, नहीं तो बिनिस बोलते। ठीक हाँ, है, बिन्नस वाल। उसके हाँ उसके नीचे थोड़े और कुछ फिगर्स है, दिख रहे हैं? क्या है ये? सोप है ना? हाँ? सोप। No, no, actually it looks to be colored soap, लेकिन it is not colored soap. These are the different types of seeds of वाल और फल्ली। वाल किंवा फल्लीचे वेगवेगळे सीड्स आहेत, and these are in 3D images. या 3D images आहेत। हेलो? सर लेकिन Yes, sir. सीड्स कलरफुल होते हैं। हाँ हाँ, ये देखो, मैं आपको मैंने अभी बताया कि ये कलरफुल इमेजेस है। आप इसको जैसे चाहे वैसे आप इसको हाँ, दीज आर कलरफुल इमेजेस। बस अभी इतना ध्यान में रखो कि दीज आर कलरफुल इमेजेस। अब नेक्स्ट टाइम लेफ्ट टॉप को देखो। अब लेफ्ट टॉप को जो है प्लांट, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? गुलमोहर। सर सन का प्लांट है क्या? हाँ, इट इज जस्ट लाइक गुलमोहर एंड इट इज गुलमोहर जैसा है। हाँ, गुलमोहर जैसा है, है। लेकिन इट इज नॉट गुलमोहर, इट इज गुलमोहर पल्चेरिमा। हेलो, its Marathi name is Shankasur and its scientific name is Cisalpinia pulcherrima. अब Cisalpinia pulcherrima की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखो। सो हेलो, यस सर। थोड़ा माइक ऑफ कर दो, कहीं से डिस्टर्ब है, थोड़ा सा Cisalpinia pulcherrima की तरफ देखो। अपाइकल एरिया में बर्ड्स है, और जैसे जैसे हम बेसल के तरफ आते हैं तो से ओल्ड फ्लावर्स है। इज इट राइट? यस सर। So it shows presence of typical raceme type of inflorescence. Then we come to phyllotaxy or arrangement of leaf. How the leaves are, whether the leaves are simple or compound. Anybody? Hello?
कोई बता सकता है लीफ सिंपल है या कंपाउंड है? कंपाउंड। लीव्स आर कंपाउंड। हम कंपाउंड लीफ कभी कब बोलते हैं? हमने कल लायरेट टाइप ऑफ लीफ देखा था। The margin of a leaf is a dissected, but dissected portion may not reaches up to the midrib. हम compound क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा structure जो है it is a leaf and it is divided into number of pinna, pinne और pinna, and hence it is a compound leaf. आप थोड़ा सा लीफ के बेस के तरफ देखो, जहां वो अटैच हुआ है स्टेम को, थोड़ा ब्रॉड एरिया दिख रहा है ये पोर्शन। Yes, sir. And this broad portion, I think you might have observed many times, leaves get fold हो जाते, और जैसे धूप आती है फिर से fully expanded हो जाते। That is because of this basal swollen portion और basal broad portion। हम इसके बारे में बाद में देखते। फिर नेक्स्ट, ये प्लांट देखा है आप लोगों ने कभी? Touch me not. टच मी नॉट, या मराठी में उसको क्या बोलते हैं? लाजाळूचं झाड. लाजाळू। 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 ठीक है, या लाजाळू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड को 4 फोटोग्राफ की एक प्लेट है। पहला एराचिस हाइपोजिया। एराचिस हाइपोजिया का मतलब है ग्राउंडनट। आप सभी लोगों ने देखा होगा ग्राउंडनट के फ्लावर जमीन के ऊपर आते हैं लेकिन फ्रूट्स लगते हैं जमीन के नीचे। इज इट राइट? Yes, sir. ग्राउंडनट के पार्ट्स जो है फ्रूट जमीन के नीचे, और ग्राउंडनट के येलो कलर के फ्लावर जो है वो जमीन के ऊपर। ए टिपिकल मॉर्फोलॉजी इज ऑब्जर्व रिगार्डिंग द ग्राउंडनट। हम ग्राउंडनट के बारे में बाद में देखते। नेक्स्ट फिगर जो है पिंकिश वायलेट कलर की, क्रोटोलारिया वेरिकोजा। क्रोटोलारिया की वैरायटी है। क्रोटोलारिया मतलब हम उसको ताग बोलते। देन नेक्स्ट है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया आल्सो, इंडिगो का मतलब नील या ब्लू आप बोलते हैं, सो थोड़ा सा वायलेट या ब्लूइश कलर के फ्लावर है, एंड द नेम इज इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लांट का नाम कोई पढ़ सकता है? एनीबॉडी? यस, इस प्लांट का नाम पढ़ो थोड़ा। Aschinomin aspera. यस, अगर देखेंगे तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज एस्चिनोमिनी अस्पेरा, लेकिन ये ध्यान में रखना आपके लिए आसान है। एस्चिनोमिनी का मतलब है इसका नाम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आया? एस्चिनोमिनी मतलब हिंदी में वर्ड था इसका नाम नहीं है, एंड दैट इज लैटिनाइज्ड इनटू एस्चिनोमिनी। अब रिगार्डिंग दिस प्लांट, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दिस प्लांट। ये प्लांट थोड़ा सा अपने टच मी नॉट प्लांट जैसा दिखेगा, सिर्फ फ्लावर का कलर डिफरेंट है। लीव्स अगेन कंपाउंड। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। इसके नाम के बारे में एक स्टोरी बहुत अच्छी है। एक पर्सन था who is supposed to be a knowledgeable person regarding the taxonomy, और एक आदमी ने उसको पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसको बुरा लगा कि अपने को इसका नाम मालूम नहीं है। नाम मालूम नहीं है तो इसको क्या बताएंगे, ये तो कुछ भी समझ लेगा। तो इसने बताया कि एस्चिनोमिनी। एस्चिनोमिनी का मतलब इसका नाम नहीं है। आ रहा है ध्यान में? हेलो? Yes, sir. लिटरल मीनिंग मराठी में अगर बोला गया तो हिंदी में तो इसका नाम नहीं है, लेकिन नेम इटसेल्फ इज नाउ एस्चिनोमिनी अस्पारा। अभी आपने ये 4-5 प्लांट कम से कम देखे। पहला आपने देखा था अलग अलग टाइप के बीन्स के सीड्स। दूसरा देखा था सिसाल्पिनिया पल्चेरिमा। तीसरा देखा था माइमोसा पुडिका। उसके बाद देखा था एराचिस हाइपोजिया या ग्राउंडनट। उसके बाद आप लोगों ने देखा था क्रोटोलारिया फेरिकोजा। उसके बाद इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया और एस्चिनोमिनिया अस्पेरा। ठीक है, हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे। अब हम यहाँ 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम बीच में देख रहे हैं। पहले लिखा है एपीजी क्लासिफिकेशन, और शायद आप सभी लोगों को पता है एपीजी का मतलब है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। पहले जो हम देखते थे कि 3 अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अभी ये तीनों टाइप और बहुत सारे जो हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम है, ये गोज बैक टू just historic period, and nowadays classification available is APG, that is angiosperm phylogeny group,
According to this angiosperm phylogeny group, Fabaceae family is divided into Kingdom Plantae, clade angiosperm. अब यहाँ देखो, इसके पहले हम क्या बोलते थे, सब किंगडम या डिवीजन एंजियोस्पर्म, यहाँ डिवीजन नहीं है, क्लेड। क्लेड के बारे में मैंने बताया था, क्लेड मीन्स ब्रांच और सपोज टू बी क्लेड मीन्स ए सेक्शन। सो किंगडम प्लांटी, क्लेड एंजियोस्पर्म, क्लेड यू डाइकॉट, यू मीन्स एडवांस, मतलब एडवांस डाइकॉट है। क्लेड रोजिड्स, रोजिड मतलब रोज से रिलेटेड जनरा है, रोजिड्स। ऑर्डर फैबेस एंड फैमिली फैबेसी। डिफरेंस क्या है एपीजी और अदर सिस्टम में? देखो, इसके पहले हमने देखा था किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, दीज आर द टैक्सोनॉमिक रैंक्स और टैक्सॉन। But nowadays in APG system they are replaced into kingdom, clade, order, family, genus, species, etc. Is it clear? Yes, Hello? sir. Okay. तो अभी हम थोड़ा सा इस फैमिली के बारे में देखते हैं। मैं आपको थोड़ा और एक साथ बात बताता। हम अगर किसी सबसे बड़ी शायद आपको मैं बताता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, आप क्लासरूम में जब नोटबुक लेके आते तो हर सब्जेक्ट के हर पेपर के लिए शायद आप अलग अलग नोटबुक लेके आते थे, सही है? हेलो? क्लासरूम में जब आते तो हर सब्जेक्ट की आपकी नोटबुक अलग अलग रहती है। हो सकता है हर पेपर के लिए भी आप अलग अलग नोटबुक यूज करते होंगे। और आजकल मार्केट में कैसे नोटबुक आते हैं आपने देखा होगा, 4-5 सेक्शन किए हुए रहते और एक ही नोटबुक में लिखा जाता। सो जस्ट लाइक दैट, whenever in a family large number of members are available, that is divided into sub family. आपके ध्यान में आ रहा है? अगर किसी फैमिली में बहुत ज्यादा नंबर्स है, बहुत ज्यादा मेंबर्स है, तो इट इज ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टर डिवाइडेड इनटू सब फैमिली। अब थोड़ा सा बात पहले पढ़ लेते। Fabaceae also called as a Leguminosae or pea family of flowering plant. अब फैबा का मतलब मैंने बताया था वाल, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल आर प्रिडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन दिस फैमिली एंड इट इज आल्सो नोन एज लेग्यूमिनोसी। शायद आपको पता है हम अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं, दैट इज सीरियल्स, माइलेट्स, फूड प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, लेग्यूम्स एक्सेट्रा। पता है आप सभी को? Yes, sir. लेग्यूम का मतलब हम मराठी में बोलते कडधान्य, किंवा आपण म्हणतो वाल वर्गीय पिकं, किंवा आपण म्हणतो कठाण। लोकल एरियामध्ये साधारण भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली एरियामध्ये याला कठाण म्हणतात। दॅट इज बिलॉंग्स टू लेग्युमिनोसी और कडधान्य। For which purpose members of Kardanya or legume or pulses are more famous? Hello? कोई बता सकता है पल्सेस किंवा लेग्यूम कशा करता प्रसिद्ध आहेत? Why we are consuming them? हेलो? अपूर्वा? सर वो रिच इन प्रोटीन्स रहते हैं इसलिए। Yes. So these are the sources of protein, or it is supposed to be, proteins are supposed to be building blocks of the body। और इसलिए हमेशा अपने डाइट में बोलते हैं कि कम से कम 150 ग्राम पल्सेस या लेग्यूम चाहिए, नहीं तो मिल्क चाहिए, नहीं तो फॉर एग्जांपल एग चाहिए, नहीं तो कोई भी प्रोटीन कंटेनिंग मटेरियल चाहिए। एंड नॉर्मली दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स। आपको मालूम है एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में मिल्क, एग और itself such as fish or meat, these are animal proteins or these are supposed to be, some of these are muscle proteins। and whatever these different members of Fabaceae और Fabaceae के जितने भी सभी legumes या fruits या seeds यूज करते हैं, these are the sources of protein। now this pea family, it is also known as a pea family किंवा वाटाण्याची family with the order Fabaceae। Fabaceae order में Fabaceae is third largest family among the angiosperm। फिर से ध्यान में रखो, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फैमिली जो है उसमें नंबर 3 है Fabaceae।
लार्जेस्ट का मतलब है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ जनरा एंड इट आल्सो अवेलेबल इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन जोन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सो दिस फैमिली इज इंटरेस्टेड। आपके ध्यान में आ रहा है why this family or family Fabaceae is important? It is distributed widely in the different part of the world and it is supposed to be third largest family after Orchidaceae, Asteraceae and Grasses family. It consists of more than 700 genera and 20,000 species of tree, shrub, vines and herb. देखो ट्री भी बताया है, श्रब भी बताया है, वाइन्स भी बताया है, हर्ब भी बताया है, मतलब सभी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑब्जर्व इन दिस फैमिली एंड नंबर ऑफ स्पेसीज कितने बताए हैं 20,000 प्लस। यू जस्ट इमेजिन सभी एंजियोस्पर्म में मिला के हम बोलते हैं कि 3.5 लाख प्लांट्स आर नोन एंड आउट ऑफ दैट 20,000 plants, about 20,000 genera belongs to family Fabaceae or belongs to family Leguminosae. Fabaceae का ही नाम Leguminosae है. So this family is widely distributed and worldwide in distribution. अभी आपके ध्यान में आ रहा है ये फैमिली क्यों बड़ी है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जियोग्राफिकली सभी एरिया में है एंड इट हैज अबाउट 700 genera and 20,000 species. I again repeat, whatever number told is many times may be different. This is according to the person who has studied that family during that period. Now next one, some of the most important commercial species include, commercial यानी economically important species कौन से है? Commercially important species include सोयाबीन, आप सभी लोग जानते हैं सोयाबीन, that is glycine max. आप सभी लोगों को ये भी पता है सोयाबीन इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सोया मिल्क के बारे में आपने सुना है? यस सर. सोया मिल्क होगा, नहीं तो सोया केक होगा. सोयाबीन के अलग अलग, सोयाबीन वडी म्हणता तुम्ही, that is also used as a food material. So soybean is a rich source of protein. Then garden pea, that is Pisum sativum, or we call it as a watana. Peanut, peanut का मतलब है शेंगदाना, Arachis hypogaea, and alfalfa, that is Medicago sativa. Most woody species are tropical herbaceous. Non-woody species occur mainly in temperate region. मतलब woody species tropical में और non-woody species temperate region में. So it shows its presence in tropical as well as temperate and subtropical and alpine zones also. This is one thing. And second important thing is it shows presence of habits such as tree, shrub, climbers and variety of different types of habits observed in case of this family. Now the systematic position. Class Dicotyledon, subclass Polypetalae, series Calyciflori, order Leguminales and family Fabaceae. मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान दे दो. शुरू में मैंने अकॉर्डिंग टू एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था और बाद में बेंथम एंड हुकर बताया था. We are much familiar with the Bentham and Hooker, and hence, according to Bentham and Hooker, class Dicotyledon, subclass Polypetalae, series Calyciflori, order Leguminales, and family Fabaceae. Now remember, Fabaceae includes many more genera, and on basis of certain character, this family is subdivided into subfamilies. अब सब फैमिली का सफिक्स हमेशा होता है OIDEAE और इसलिए इसके तीन सब फैमिली जो है पैपिलियोनॉइडी, सिसाल्पिनॉइडी एंड माइमोसाइडी. आपके ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. फैबेसी फैमिली का नाम तो फैबेसी है, नहीं तो पहले पुराना नाम था लेग्यूमिनोसी. लेग्यूमिनोसी के को चेंज कर दिया गया, दैट इज फैबेसी, बिकॉज लेग्यूमिनोसी में सफिक्स ACEAE नहीं आ रहा था और यहाँ उसका नाम फैबा रखा. फैबा मतलब वाल और इट इज तुम्हें मनता शेमफली, दैट इज लार्जेस्ट जनरा. सब फैमिली में डिवाइड किया, सब फैमिली का हमेशा सफिक्स होता है पैपोइडी, OIDEAE, और इसलिए इसके तीन सब फैमिली पैपिलियोनॉइडी, सिसाल्पिनॉइडी और माइमोसाइडी.
अभी आपके ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बड़ी फैमिली थी, उसको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया, उसके बावजूद भी इन एवरी सब फैमिली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर मेनी मोर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ फैमिलीज। और इसलिए बहुत सारे लोग पेपिलियोनाइडी को पेपिलियोनेसी कहते हैं, सिसालपिनोइडी को सिसालपिनेसी कहते हैं, और माइमोसाइडी को माइमोसेसी कहते हैं। मतलब सब फैमिली होते हुए भी उसको फैमिली की रैंक या फैमिली का दर्जा लोगों से दिया गया है। पेपिलियोनेसी का टिपिकल एग्जाम्पल है पी या गार्डन पी। सिसालपिनेसी का टिपिकल एग्जाम्पल है कैसिया फिस्चुला, कैसिया टोरा और तरोटा। माइमोसिसी का टिपिकल एग्जाम्पल है टच मी नॉट, और आपने अभी अभी बताया था दैट इज माइमोसा पुडिका, और टू बी मोर प्रिसाइज अनदर नेम ऑफ द प्लांट इज अवर बाबुल किंवा सिसालपिनिया, सॉरी बाबुल और अकेसिया अरेबिका। आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. I again repeat the same thing. Remember this family. This family you have to remember because it is very important family. It is subdivided into 3 sub-families. And whatever these 3 sub-families, these are much larger, and even these are more than size in our normal families, and hence these sub-families many times, fortunately, these are also called as a family, but families such as Papilionaceae, Cisalpinaceae and Mimosacea, don't be underestimate or don't be wrongly consider. Fabaceae and Leguminosae are one and same term, but in Leguminosae सफिक्स ACE नहीं आ रहा था, इसलिए लेग्यूमिनोसी इज ओल्डर नेम एंड फैबेसी इज न्यू नेम। जब भी फैबेसी कहा जाता उसका मतलब उसके अंडर ऑल 3 फैमिलीज है, पेपिलियोनेसी, सिसालपिनेसी और माइमोसाइडी। अगर पेपिलोनाइडी, सिसालपिनोइडी और माइमोसाइडी ऐसा टर्म यूज किया तो इट इज सब फैमिलीज, but unfortunately these subfamilies are also called as Papilionaceae, Cisalpinaceae and Mimosacea. So please remember these things. अभी मैं डायरेक्ट फैमिली की तरफ जाने के पहले मैं आपको और एक छोटा सा ये दिखाता, जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं बिकॉज अगर मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाए तो आपके ध्यान में रहने के ज्यादा चांसेस है। क्या आप लोगों को दिख रहा है ये? हेलो, Yes, sir. हाँ। अभी पहला फोटोग्राफ अल्बिजिया लिबैक। क्या ये रोड साइड पे ट्रीज आपने देखे हैं? ऐसे लीफ और ये फ्लावर्स है उसके, अल्बिजिया देखे हैं? Yes, क्या sir. नहीं देखे? Yes, sir. तो No, sir. ओके, इसको कोई लोग शिरीष भी बोलते हैं, मराठी में शीरीष, शिरीष नहीं तो इसका वर्नैक्युलर नेम जो है सीरस, सीरस नाम सुना होगा, तो इट इज अ वर्नैक्युलर नेम ऑफ दिस प्लांट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, सो अल्बिजिया लिबेक और शिरीष। उसके नेक्स्ट ये प्लांट आपने रोड साइड अलोंग प्लांटेशन किया हुआ देखा होगा। उसके बाद अकेसिया अरेबिका और बाबुल। क्या आप सभी लोगों ने बाबुल प्लांट देखा है? हेलो, Sir. Yes. बाबुल के फ्लावर देखो, येलो कलर के फ्लावर्स रहते हैं, जैसे कान में पहनते टॉप्स, वैसे बाबुल, अकेसिया अरेबिका और बाबुल। उसके नीचे नेक्स्ट देखो माइमोसा पुडिका, और इसका नाम है लाजाड़ू, और इसका नाम है लाजवंती, और इसका नाम है चुई मुई। और शायद आप सभी लोगों को पता है जैसे ही हम प्लांट को टच करते वैसे लिप गेट्स फोल्डेड। लाजाड़ू किंवा माइमोसा पुडिका आल्सो अवेलेबल इन आवर कॉलेज आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट आपने देखा होगा, नाम क्या है? एंटेडा फोइटिडा। क्या आप लोगों ने ये
हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? Yes, sir. अभी एक मिनट। हाँ, कनेक्शन लॉस हो गया था क्या? हेलो, हाँ सर, कितना टाइम? जस्ट हेलो। 30 seconds. 1-2 सेकेंड ऐसा कुछ। ओके ओके ओके, चलो। ये एंटेरा फोइटिडा प्लांट देखा है आपने? हेलो, नो सर। नहीं। रोड साइड को शायद आपने देखा होगा, ये मेडिसिन बेचने वाले नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं, और इसमें एक प्लांट का नाम है जिबली। छोटा सा थोड़ा सा राउंडेड कलर के सीड्स रहते। मराठीत ज्याला आपण गुडघ्याची वाटी म्हणतो, तसं गुडघ्याच्या जे पोन आहे तेवढ्या आकाराचं साधारणपणे असतं. अँड नाव रिमेंबर रिगार्डिंग दिस एंटेरा फोइटिडा, इट इज सपोज टू बी लार्जेस्ट सीड किंवा शेंग म्हणतो मराठीत आपण, आणि इट्स हाइट इज अबाउट 1.5 मीटर. आप बात सुन रहे हैं मेरी? हाइट कितनी हाँ, है? सर। 1.5 मीटर. 1.5 मीटर मीन्स आपने 2 हाथ फैलाए करीबन उतना लंबा. अब इसमें देखो आप, इसकी हाइट अगर मैंने 1.5 मीटर या 5 फीट बोला, तो 5 फीट में सीड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब करीबन 4 इंच का एक सीड हो गया. आपके ध्यान में आ रहा है? यस सर। करीबन 1.5 फीट नहीं, अगर ये 1 फीट का है तो 3-4 इंच का एक सीड हो जाता है. मतलब इतने साइज का एक सीड, इसमें जितना बैठेगा उतना. एंड इट इज सपोज टू बी इलोंगेटेड. एंटेरा फोइटिडा, इट इज अ क्लाइंबर एंड इट इज नोन एज अ जिबली. चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते. क्या आपने ये प्लांट कभी देखा है? हेलो, यस सर। कौन सा है, कोई बता सकता है? यस, नीचे लिखा है, कम से कम वो पढ़ के बता सकता है. हेलो, सैराका इंडिका। सराका इंडिका, और सामने मराठी नाम क्या लिखा है? क्षितेज अशोक। सीतेचा अशोक. अभी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगा. बहुत बार आपने देखा होगा अपने आजू बाजू में जो इक्सोरा हम गार्डन में देखते हैं, इक्सोरा जैसा ही दिखता है, लेकिन इक्सोरा 3-4 फीट तक ग्रो होता है, श्रब है, लेकिन अंडर श्रब है. लेकिन ये प्लांट अगर देखोगे तो बहुत बड़ा बिग ट्री है. आप में से कितने लोगों ने रामायण देखा है? बहुत सारे, ठीक है. नहीं देखा। रामायण में यस सर, देखा ओके है सर. ओके, रामायण में सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो पेड़ है सराका इंडिका, या उसको बोलते हैं सीता अशोक. अब आपके ध्यान में आएगा, इट इज अ वेरी ह्यूज ट्री. आप में से अगर कोई महाराज बाग गया है तो महाराज बाग में ये सीता अशोक का प्लांट है. गार्डन की अंदर जो ऑफिस है उसके सामने, या राइट हैंड साइड वाला गेट है, वहां ये प्लांट है सीता अशोक. अपने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के गार्डन में भी ये सीता अशोक का प्लांट है. मैं कहाँ है आपको बताता हूँ. रोज गार्डन है अपने यहाँ, जैसे अपन एंट्री करते हैं इंस्टीट्यूट में, वैसे राइट हैंड साइड में चौरस लोखंडी ग्रिल लावलेला रोज गार्डन है. हेलो, यस सर। हाँ, उसके सेंटर में ये प्लांट है. नहीं तो बॉटनी की तरफ जो गार्डन है वहां भी है, मैं बाद में आपको ये दिखा दूंगा. उसके बाद में और 2 फोटोग्राफ राइट हैंड साइड में देखो. ये देखा है आपने कभी? मूठ बंद केल्यानंतर होतो एवढा गोल, साधारणपणे राउंड. ऊपर आप राउंड देखे है, और इसको क्रम्पल हो गया है. रोड साइड पर ये रहते हैं. एंड दिस वन इज पार्किया बिगलैंडुजा, एंड पार्किया बिगलैंडुजा बिलोंग्स टू फैमिली सिसालपिनेसी. सराका इंडिका भी सिसालपिनेसी फैमिली का है. ये माइमोसेसी का है. ये एंटेरा पेपिलोनेसी का है. हम नीचे देखते, चलो नेक्स्ट. एडिनथेरा पेहोनिया. क्या आप लोगों ने ये लाल कलर के सीड्स देखे हैं? नीचे वाले रो में पूरे लाल कलर का एडिनथेरा पेहोनिया, जिसका नाम है ढोरगुंज, बताया है. हेलो, सर क्या नहीं आपने दिख रहा। ये प्लांट सर, नहीं देखा है दिख रहा. कभी? साइज बताता मैं, शर्ट के बटन जितनी साइज, और प्योर रेड. आपको अभी यहाँ देखने के बाद पता चलेगा.
आप लोगों में से अगर कोई महाराज बाग गया है तो महाराज बाग में ये ढोरगुंज का प्लांट अवेलेबल है, डार्क रेड कलर के फ्लावर फ्रूट सीड्स है। दूसरा आपने देखा होगा अपना जीपीओ या जीपीओ के सामने जो कमिश्नर्स ऑफिस है, कमिश्नर के ऑफिस के सामने भी ये प्लांट्स है। और आप में से बहुत सारे लोग अगर रामटेक देखा है तो रामटेक लेफ्ट एंड राइट साइड को गढ़ मंदिर जाते वक्त ये ढोरगुंज, गुंज म्हणजे छोटी असते आणि ही ढोरगुंज म्हणजे मोठी है, सो इट इज नोन एज ढोरगुंज। आप में से कोई अगर लाल किला की तरफ गए हैं दिल्ली तो वहां इसके गार्लैंड्स बना के बेचते हैं। सो एडेंथेरा पाओनिया और ढोरगुंज आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनोसी और पेपिलियोनेसी। तो क्या आपने कम से कम ये इतने प्लांट्स इस फैमिली के देखे हैं? हेलो सर। ओके, चलो हम और भी एक दो प्लांट है तो उसके बारे में पहले देखते। तो माइमोसेसी हो गया अपना। अभी इमेजेस फ्रॉम सिसाल पिन्नेसी देख लेते। अभी अभी पहले बारे में आप में से किसी ने बोला था गुलमोहर, और मैंने आपको क्या बोला था, वो गुलमोहर नहीं है। वो कौन सा प्लांट बताया था मैंने? ये शुरू वाला प्लांट सिसालपिनिया पल्चेरिमा बताया था, राइट? ये यस सर। सिसालपिनिया पल्चेरिमा बताया था। और अभी अभी आप जो यहाँ प्लांट जो देख रहे हैं ये दिस इज गुलमोहर। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, 5 में से एक व्हाइटिश कलर की रहती है एंड इट इज नोन एज गुलमोहर। नीचे देखो, जब गुलमोहर को फ्लावरिंग रहता है during the summer, entire plant shows presence of flower and leaves are normally absent। तो आप सभी लोगों ने गुलमोहर देखा है, these are the leaves of गुलमोहर, again they show compoundly। उसके बाद नेक्स्ट 2 फोटोग्राफ्स किस चीज के हैं? हेलो सर फोटो ही नहीं दिख रहा है। फोटो नहीं दिख रहा है? सर हेलो सिर्फ गुलमोहर ही दिख रहा है। हाँ सर, गुलमोहर दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, टेक्स्ट लोड नहीं हो रहा है। हाँ आ गया। दिख रहा है? हेलो हाँ यस सर। यस सर। हाँ, किस चीज के है ये 2 फोटो? चिंचाचे झाड। चिंच, दैट इज टैमरिंडस इंडिका और चिंच। आपने ये चिंच के फ्लावर भी देखे होंगे, अगेन इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोसी। उसके नीचे सराका इंडिका किंवा सीतेचा अशोक। अब ये बता दो, आप में से किसी ने ये देखा है अमलताश किंवा म्हणता तुम्ही बहावा? ये ऐसे बड़े बड़े लंबे पॉट्स देखे होंगे एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस भी आपने देखा होगा। क्या ये देखा है आपने? धूप काले में प्लांट्स इसके देखे होंगे। सो दिस वन कैसिया फिशुला और अमलताश और बहावा। उसके बाद अनदर कैसिया सोफोरा। देयर आर नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ कैसिया, कैसिया ऑक्सिडेंटलिस, कैसिया टोरा और तरोटा किंवा टाकळा। देन बहुनिया वाहेली, वेल्या पळस म्हणतात और पळस। आप फोटोग्राफ दिख रहे हैं ना आपको? यस सर। देन sir. पार्किन्सोनिया अक्युलियाटा, पार्किन्सोनियाच म्हणतात त्याला, किंवा काही वेळेला किकर किंवा वेडी बाबळ म्हणतात। देन नेक्स्ट वन सिसालपिनिया बोंड्यूस किंवा सागर गोटी। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये देखा होगा, सागर गोटी छोटे छोटे रहते हैं, इलिप्टिकल और इलांगेटेड, और खास करके लड़कियां खेलने के लिए उसका यूज करते हो, नहीं तो जानवर के गले में भी इसके सीड्स बांधते। सिसालपिनिया बोंड्यूस और सागर गोटी। उसके नीचे बहुनिया वेरीगेटा, शायद आपको पता होगा। लीव्स ऑफ दिस प्लांट विच आर यूज्ड टू ऑफर ड्यूरिंग द दशहरा, आणि आपण त्याला सोनं म्हणतो, और इट इज नोन एज ए कैमल हम्प ट्री। बहुनिया वेरीगेटा एंड उसके फ्लावर्स। उसके बाद नीचे देखो हिमेटोजाइलॉन कैम्पिचियानम। क्या आपने हिमेटोजाइलॉन वर्ड सुना है? हेलो नो सर। हिमेटोजाइलिन यूज किया है आपने? हिमेटोजाइलिन? नो सर। Hematoxylin is a stain. It is a red colored stain normally used for cytological preparations। अगर क्रोमोसोम के स्टडी करना है तो नॉर्मली उसके लिए हिमेटोजाइलिन यूज करते। सो रिमेंबर, हिमेटोजाइलिन इज अ डाई और कलर obtained from plant हिमेटोजाइलॉन कैम्पिचियानम। वुड से जो डाई एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिमेटोजाइलॉन। सो इट इज अ रेड कलर्ड डाई। सो रिमेंबर, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट सिसालपिनिया पल्चेरिमा।
मैंने इसका नाम आपको बताया था शंकासुर, शायद पता है आपको, आपके याद में भी होगा। नेक्स्ट प्लांट दैट इज साइनोमित्रा कॉलीफ्लोरा, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन आप सिर्फ दो देख लो, साइनोमित्रा कॉलीफ्लोरा। So these are few of the plants from family Cisalpinaceae. Okay, हम लोग अभी थोड़ा सा इस फैबेसी फैमिली के तरफ देखते हैं, और फैबेसी फैमिली के तरफ हमने जो चीजें अभी तक देखी है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज सपोज टू बी लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। अब लार्जेस्ट फैमिली है, मैंने बताया, सिस्टमैटिक पोजीशन देखी। अब आउट ऑफ दीज डिफरेंट सब फैमिली पैपिलियोनेसी या लेग्यूमिनोसी के कुछ प्लांट्स का नाम देखो। ग्राउंडनट, एरेचिस हाइपोजिया, सनहेम्प किंवा मराठीत ताग म्हणतो, क्रोटोलारिया जंक्सिया, शायद आप सभी लोगों को पता है। क्रोटोलारिया और ताग इज cultivated by the people and it is used as a green fertilizer, Crotalaria jungsia. Then Lathyrus odoratus, that is sweet pea, Glycine max or soybean, Cicer aurantium or chana, and Pisum sativum is watana. But remember, there are large number of plants belongs to family Leguminosae. We go through these different plants in next successive period. ये तो हमने देखा है। उसके बाद हाँ, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, हम पहले थोड़े डायग्नोस्टिक कैरेक्टर देखते। हमें सिर्फ 2 स्लाइड अभी एक्सप्लेन करना है, 2-3 मिनट लगेंगे। फॉर एवरी फैमिली वी आर गोइंग टू स्टडी द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बिकॉज एटलीस्ट वन और फ्यू ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। हैबिट में देखो, एनुअल और पेरिनियल, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर और ट्री, मतलब सभी टाइप ऑफ प्लांट्स है। रूट्स, फाइब्रस टैपरूट ऑफन डेवलप नोड्यूल्स इन हर्ब्स, हर्बेसियस है तो नोड्यूल डेवलप करते। मैंने अभी अभी आपको बताया था क्रोटोलारिया, क्रोटोलारिया किंवा ताग आणि धायंचा हे 2 प्लांट तुम्ही ऐकले असतील। साधारणपणे शेतकरी शेतामध्ये ग्रीन फर्टिलायझर किंवा कंपोस्ट फर्टिलायझर वापरतो, त्याच्या ऐवजी ग्रीन फर्टिलायझर म्हणून ताग किंवा धायंचा किंवा लेग्युमिनस क्रॉप प्लांट करतो, आणि त्याला भरपूर फुलं आल्यानंतर, फ्लावर्स येण्यापूर्वी भरपूर पाला आल्यानंतर त्याला जमिनीत काढून टाकतो आणि त्याच्यापासून ग्रीन फर्टिलायझर और कंपोस्ट फर्टिलायझर इज ऑब्टेन्ड. आय थिंक दिस प्रॅक्टिस इज नोन टू यू. त्याच्या व्यतिरिक्त शेंगदाणा, सोयाबीन, तूर, मूग, मटकी, वाटाणा हे सगळे प्लांट हार्वेस्ट कसे करतात? एनीबडी? हॅलो, तूर, मूग, मटकी, वाटाणा, शेंगदाणा हे प्लांट हार्वेस्ट कसे करतात? हार्वेस्ट करताना शेंगदाण्यामध्ये ग्राउंडनटच्या बाबतीत फक्त फ्रुट्स अंडरग्राउंड असतात म्हणून उपटून, अदरवाइज तूर, मूग, मटकी, मसूर, वाटाणा हे सगळे प्लांट कट करून काढतात जमिनी लगत. Because I think you might be known, these plants have root nodules and these root nodules shows presence of nitrifying bacteria and hence they are going to increase the nitrogen level of soil. आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं? Yes sir. हाँ, स्टेम हर्बेसियस और मूडी नहीं, यहाँ उड़ी चाहिए, मूडी नहीं, उड़ी उड़ी। सिलिंड्रिकल टेंड्रिल्स, क्लाइंबर, टेंड्रिल्स होते हैं नहीं तो क्लाइंबर्स होते हैं। Leaves petiolate, alternate, compound or pinnate types, stipulate. Stipules may be modified into leaves or thorn. Parallel venation. Inflorescence, racemose or cymose. Flowers are clustered into heads. Flower pedicellate, bracteate, actinomorphic or zygomorphic. Regular, complete, bisexual, pentamorous, hypogynous but slightly perigynous. मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस है या पेरिगाइनस है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, रेगुलर है या इरेगुलर है। कैलिक्स 5 और 4, समटाइम फ्री और फ्यूज्ड। करोला 5, समटाइम 4 पेटल्स और फ्री और यूनाइटेड कलर्स। स्टैमेन्स 10 और न्यूमरस, 10 है या 10 से ज्यादा है। मेनी टाइम्स दे मे बी पॉलीएंड्रस, पॉली मीन्स फॉर्मिंग मेनी बंडल्स। डायएडल्पी, इसके पहले हमने देखो टेट्राडिनामी देखा था, यहाँ डायएडल्पी, डाई मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 2 बंडल्स, मतलब 9 स्टैमेन का एक बंडल और सिंगल सेपरेट। सो डायएडल्पस एंथर्स बेसिफिक्स्ड चाहिए, बेसिफ्लेक्स नहीं, बेसिफिक्स्ड।
कार्पेल, मोनोकार्पेलरी, ओरी सुपीरियर, प्लासेंटेशन मार्जिनल, फ्रूट, लेग्यूम और समटाइम लोमेंटम। हम मार्केट में जितने भी वाल देखते हैं सभी लेग्यूम्स है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक. So these are few of the interesting characteristic features of Fabaceae. But please remember, we are going to study this family in more detail because ये family सबसे बड़ी family है, and that's why it is necessary to study this family along with some of the examples. आज मैंने इसके preliminary part सिर्फ explain किए हैं. इसके बाद हम कुछ प्लांट्स के फोटोग्राफ देखते हैं एंड लेटर ऑन, यानी एक सब फैमिली से, एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस फैमिली. दिस इज सपोज टू बी लार्जेस्ट फैमिली फ्रॉम योर सिलेबस एंड हेंस इट रिक्वायर मच मोर अबाउट 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस. मैक्सिमम प्रेजेंटी कितनी थी आज? 51. फिर से प्रेजेंटी कम हो रही, क्यों? आज छुट्टी है, समझ लिया क्या सभी लोगों ने? आज आप ही का लेक्चर हुआ है सिर्फ. हाँ सर. देखो सर आपका ही लेक्चर हो रहा है. देखो ये ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, मेरा लेक्चर जिस दिन है उस दिन होगा, चाहे छुट्टी होगी नहीं होगी कोई मतलब नहीं है. उसका रीजन मैं बताता हूँ. नाउ यू आर इन लॉकडाउन एंड घर में बैठे बैठे बोर होने से एक लेक्चर अगर हो गया तो उतना ही सिलेबस आपका कंप्लीट होता है. तो जरूरी नहीं है कि हम छुट्टी ले ले. हाँ, बाय वर्च्यू एक आध दिन अगर आपको काम है या मुझे काम है और मैं नहीं लेक्चर लेता, आपको भी पता है, उस दिन जिस दिन मुझे काम है उस दिन मैं मेरा जो भी लेक्चर है वो मैं आपको आइदर व्हाट्सएप पर या क्लासरूम पर शेयर करता हूँ. सो छुट्टी है ऐसा नहीं है. अगर आप 1 घंटा स्पेयर कर सकते हैं तो इट इज मोर गुड. चलो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं थोड़ा सा नोट इसकी रिफाइन करके शेयर कर रहा हूँ. ठीक है? हेलो. ओके सर. ओके सर. ओके. एक सेकंड ना, कोई तो बोल रहा था वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, कुछ टाइम के लिए बीच में शायद वॉइस का प्रॉब्लम था. ठीक है, कोई बात नहीं है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट टाइम. ठीक है सर आप असाइनमेंट